नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना और हैदराबाद तरक्की की राह पर गामज़न। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हैदराबाद में HCL टेक कैंपस की इफ्तिताई तक़रीब से खिताब। SLBC टनल में जाने की इजाज़त ना मिलने पर हरीश राव और BRS कायदीन का हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज। तेलंगाना कानून साज कौंसिल इंतखाबात की आज हुई पोलिंग। BJP और कांग्रेस में सख्त मुकाबला। रेवंत रेड्डी BJP के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत BJP के कंट्रोल में है कि कविता का बयान। हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व अस्पताल का किया दौरा और तामीराती काम और मसाइल का लिया जायज़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर खजूरों में छुपाकर लाया गया सोना बरामद, स्मगलिंग नाकाम। दिल्ली असेंबली में हंगामा, आम आदमी पार्टी के 21 MLAs मुअत्तल, MLAs का एहतजाज। हैदराबाद के लंगर हाउस झील में हादसा, बेटे को बचाते हुए बाप भी डूबकर जाम बहा। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माधापुर हैदराबाद में HCL टेक कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की को दुनिया तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब हमने तेलंगाना राइजिंग और हैदराबाद राइजिंग की बात की तो कुछ लोगों को शक था, लेकिन आज तरक्की सबके सामने है। ये सफ़र रुकने वाला नहीं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद का मुकाबला सिर्फ मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु से नहीं बल्कि आलमी शहरों से है। उन्होंने रियासत को बरक़ी गाड़ियों, डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राई प्रोसेसिंग का मरकज़ बनाने पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में हर रोज़ आलमी कंपनियों से मुआहदे हो रहे हैं और नई सहूलियात का आगाज़ हो रहा है। सिर्फ एक साल में तेलंगाना ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में सबसे ज़्यादा सरमाया हासिल किया है, लेकिन गैर मुल्की दौरों में ही 1.78 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल कर ली गई। HCL टेक की नई सहूलियात 3.2 लाख मुरबा फीट पर मुहित है और 5000 मुलाजिमिन को रोज़गार के मौके फराहम होंगे। इस मौके पर HCL टेक के CEO विजय कुमार, वज़ीर सनत श्रीधर बाबू और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। Good morning, everyone. My colleague Minister T. Sridhar Babu Garu, Mr. Vijay Kumar, CEO and Managing Director HCL, Mr. Pawan Vadapalli, CVP and Global Head Digital Business, and Mr. Jayesh Ranjan, Special Chief Secretary Telangana Government. All of you wonderful professionals. I'm happy to inaugurate the KRC campus of HCL in Hyderabad. Every day these days, I'm either signing new MOUs with multinational and big corporations come to Hyderabad, or we are inaugurating new facilities of MOUs we signed last year. Today, Hyderabad and Telangana are the fastest growing city and state in the entire country. In just over 1 year, I'm proud to share we have received highest investments in Telangana, both domestic and foreign. We have made it the #1 in job creations. We have highest AI adoption and lowest inflation. When I first said I will make Telangana $1 trillion GDP state, some people said it was not possible. Now, after 2 trips to Davos, where we signed 40,000 crores and 1.78 lakh crores MOUs every 1 year, everyone is saying yes, Telangana raising cannot be stopped. When I said my competition for Hyderabad is not with Mumbai, Delhi,
Chennai, Bangalore. Some people said it was very big dream. Now, when we made Hyderabad number one EV adoption, when we are transforming our state into hub for data centers, green energy, for life sciences, for biotech, for skills, for manufacturing, for agri-processing, people say, yes, Hyderabad is unstoppable. When I first said Telangana rising, some people were not sure. Now whole world agrees. When I first said Hyderabad rising, some people were in doubt. Now the whole world agrees. We welcomed Amgen, one of the world's largest life sciences company. A few days ago, we conducted BioAsia, one of the world's finest conferences, and today we are here at HCL. As a global company, HCL Tech has made India proud. It operates in 60 countries and more than 2.2 lakh people. You create world-class offerings in digital, engineering, cloud, and AI across many verticals. Since you first arrived in Hyderabad in 2007, you have grown bigger. Today, with this world-class facility at KRC, with nearly 5,000 people in 3.2 lakh square feet area, HCL Tech will do great things in Hyderabad, just like Telangana government. Thank you. साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने पुलिस की जानिब से SLBC टनल जाने से रोकने पर सख्त एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और पुलिस को जानबूझकर इन्हें रोकने का हुक्म दिया गया। BRS कायदीन ने कहा कि वह आवाम के मसाइल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमत ज़बरदस्ती इन्हें रोक रही है। पुलिस की सख्ती पर BRS कायदीन ने नारेबाजी की और हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरा किया। इस मौके पर हरीश राव के अलावा दीगर BRS कायदीन भी मौजूद थे। बता दें कि टनल में 8 मज़दूर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी है और रेस्क्यू टीमें मुसलसिल काम कर रही है, मगर मुश्किल हालात के बायस ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। रेवंत रेड्डी फोन करा 6 लोगों को भेजे बोल के रेवंत रेड्डी से फोन है। रेवंत रेड्डी का फोन आया मालूम है। डीजी इंटेलिजेंस फोन करा। अरे 4-4 मिनट కాంగ్రెస్ అధికారంలో వచ్చిన 15 నెలల్లో 4 ప్రాజెక్టులు కూలిపోయినాయి. ఖమ్మం జిల్లాలో పెద్దవాగు కొట్టుకుపోయింది. చాలా ఆస్తి నష్టం, పంట నష్టం జరిగింది. ఇవాళటి వరకు ఆ ప్రాజెక్టు పునరుద్ధరించే పని జరగడం లేదు. సుంకిశాల కుప్పగూలిపోయింది. హైదరాబాద్కు మంచినీళ్ళు ఇచ్చే సుంకిశాల ప్రాజెక్టు మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల, అవినీతి వల్ల ఇవాళ అది కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా నిర్మించిన వట్టెం పంప్ హౌస్ జలమయమైపోయింది మీ యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల. ఇవాళ SLBC టనల్ కూలిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. 4 ప్రాజెక్టులు కూలిపోయినాయి మీ 15 నెలల్లో. ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం నేను అడుగుతా ఉన్నాను. అసలు నీళ్లు ఉన్న నీళ్లను కూడా కాపాడలే మీరు. శ్రీశైలం ఇప్పుడు అడిగలు చూస్తే మొత్తం ఖాళీ అయిపోయింది. तेलंगाना कानून-साज कौंसिल के 3 हलकों में जुमेरात को इंतखाबात के लिए पोलिंग हुए। ये इंतखाबात मेदक, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट्स और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स हलक़े के लिए हुए। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही, जिसके लिए इंतज़ामिया ने वसी तर इंतज़ामात किए थे। BJP 3 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है, जबकि हुक्मरान जमात कांग्रेस ने सिर्फ ग्रेजुएट्स हलक़े से उम्मीदवार खड़ा किया है और BRS ने इंतखाबात से दूरी अख्तियार कर रखी है। BJP उम्मीदवार की हिमायत में मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी व ममलिकती वज़ीर बंडी संजय ने भी मुहिम चलाई, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती कांग्रेस के सदर B महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाई।
हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप ने मुकामी एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा चार मीनार में वाक़ निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर इमारत के तामीराती काम, हॉस्टल की मुंतकिली और दीगर मसाइल का जायज़ा लिया गया। बाद इस सिलसिले में चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया को तफसीलात से आगाह किया और मसाइल के हल के लिए मुमकिन इक़दामात पर रोशनी डाली। वो सिवा इसमें हाँ उधर हार्ट के लिए आप इंडेंट रखने से उधर से आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर और नखीब मिल्लत अलहाज बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर आज कलेक्टर हैदराबाद निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल चार मीनार का उन्होंने दौरा किया। हबीब मिल्लत ने मिनिस्टर से कहा, हेल्थ मिनिस्टर से, कि यहाँ पर हॉस्टल के लिए तो दूसरी जगह होना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल के लिए वो कॉलेज प्रेमिसेस में और हॉस्पिटल प्रेमिसेस में नहीं है, नई जगह आप बताइए। तो उन्होंने आज आके दौरा किया, यहाँ का पूरे दवाखाने का दौरा किया और हॉस्टल का और जो बिल्डिंग टूटने वाले हैं उसका उन्होंने दौरा किया और पूरा उन्होंने यहाँ से फीडबैक भी लिया और इंशाअल्लाह ताला हॉस्टल के लिए जो जगह हबीब मिल्लत ने बताई, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बताई, इंशाअल्लाह वो जगह पर यहाँ से 2 एकड़ पर हॉस्टल बनेगा कोई नई जगह पर करीब में। और जो जितना भी बिल्डिंग के टूटने के काम है, डिमोलिशन, वो काम जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे बिल्डिंग टूटने का, और कॉलेज का काम भी यहाँ पर शुरू होगा। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और नखीब मिल्लत की और हबीब मिल्लत की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने पहले 52 लाख रुपए सैंक्शन किए, 52 करोड़ रुपए सैंक्शन किया, जिसके लिए 10.5 करोड़ रुपए पुरानी बिल्डिंग के रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस के लिए, और नए फर्स्ट फेज में जो काम होगा कॉलेज का उसके लिए 42 करोड़ किया। और ये इसके बाद भी नुमाइंदगी की, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन 80 करोड़ का है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया और उन्होंने ये कहा कि मैं 80 करोड़ सैंक्शन का और 30 करोड़ सैंक्शन कर रहा हूँ, टोटल 80 करोड़ की लागत से यहाँ पर कॉलेज बिल्डिंग बनेगी और ये पुरानी बिल्डिंग को रेस्टोर कर इसका रिनोवेशन भी होगा। जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है। BRS MLC के कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सियासत सिर्फ हमारे ख़ानदान को निशाना बनाने पर है, जबकि हम उसूलों पर चलते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या हमारे ख़ानदान के कोई फ़र्द बग़ैर ओहदे के असर और रसूख रख रहा है। कविता ने वज़ीर आला के भाई तिरुपति रेड्डी के सरकारी इजलासों में शिरकत पर एतराज़ करते हुए कहा कि यह गैर आइनी है। कहा, अनुमुला ख़ानदान के लिए अलग उसूल है, मगर कलवा कुंटला ख़ानदान पर खुलेआम तनक़ीद की जाती है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को तकब्बुर और ख़ानदानी हुक्मरानी की अलामत करार दिया और कहा कि वो दूसरों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन अपनी हुकूमत में गैर जमहूरी इक़दामात पर खामोश है। ఇదే మాటలు మాట్లాడుతున్నారు, లేనిపోని విషయాలు ఎక్కడెక్కడియో తీసుకొచ్చి మా కంట పెడతా ఉన్నారు. అంటే కల్వకుంట్ల కుటుంబం మీద టార్గెట్ తప్ప, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద టార్గెట్ తప్ప ఇంకో ఆలోచన కనబడతలేదు. మా కల్వకుంట్ల కుటుంబం అంటే కట్టుబాట్లతో ఉండేటటువంటి కుటుంబం. ఎప్పుడు కూడా మేము లైన్ దాటలేదు. నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు, ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా మా జిల్లాలో మా ఎమ్మెల్యేలు కాదని నేను మా జిల్లాకు పోలేదు. ఎప్పుడు కూడా ప్రోటోకాల్ వైలేషన్ చేయలేదు. ఇలా ఏం జరుగుతుందండి ఈ రాష్ట్రంలో? నిన్న ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి వచ్చినాక ముఖ్యమంత్రి గారు బాహాటంగా ప్రకటించారు, ఎస్ మా అన్న తిరుపతి రెడ్డి నా కాన్స్టిట్యున్సీ చూసుకుంటారని. మంచిది, కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్గా ఆయన చూసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. కానీ కలెక్టర్ గారు ఎందుకు ఆయనకు ఎదురెళ్ళి స్వాగతం చెప్పాలి? ఎందుకు అఫీషియల్ మీటింగ్లలో కూర్చోవాలి, అఫీషియల్ రివ్యూలలో కూర్చోవాలి? మరి ఇది రాజ్యాంగేతర శక్తుల్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నట్టు కాదా? అంటే యనుమల కుటుంబం అయితే ఒక న్యాయం ఉంటుంది, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని మాత్రం మీరు అడ్డగోలు గట్టిపడతాట అనొచ్చా? మేము అట్లా కట్టుదప్ప ఎప్పుడైనా వ్యవహారం చేసినామా? అఫీషియల్గా ఎన్నిక కానటువంటి వ్యక్తి మా కుటుంబంలో ఎవరైనా ఎక్కడన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినటువంటి విషయం మీరు చూసినరా?
ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు ఏం జరుగుతుందో. ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు కదా, మొత్తం వాళ్ళ టోటల్ బ్రదర్స్ అందరూ, ఒకరికి బుగ్గ కారు వస్తుంది, ఒకరికి కలెక్టర్ వచ్చి ఎదురుగా స్వాగతం చెప్తాడు. ఇక ఆ లిస్ట్ నేను చదవదలుచుకోలే, అంత పర్సనల్గా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడలే, కానీ వాళ్ళ మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడితే కొన్ని వారి అనుంగు పత్రికలు ఉన్నాయండి. ఇది హెడ్లైను, ఇది ఏం హెడ్లైన్? ఎవరికైనా వనుకొచ్చే హెడ్లైనా? దీనికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? దీనికి ఏమైనా మ్యాటర్ ఉందా? ఏంది ఈ హెడ్లైన్? ఏంది అంటే అల్టిమేట్గా ఏం చేయదలుచుకున్నారు మీరు? తెలంగాణ ప్రజలకు రక్షణ కవచంగా ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలి, కేసీఆర్ గారి కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి. ఇది ఏం హెడ్లైన్ అసలు? ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిండ్రా? చిట్ చాట్లో ఏదో ఆయన సాటుమాటుగా మాట్లాడిండు. మాట్లాడితే ఒక పత్రిక, ప్రధాన పత్రిక హెడ్లైన్స్లో వస్తుందంటే దీని వెనుక ఉన్న కుట్రను దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పత్రిక ఎవరిది? నిన్న ఆయన కలిసినటువంటి మోడీ గారు ఎవరు పార్ట్నర్గా ఉన్నారు? కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఎవరు అధికారాన్ని పంచుకుంటున్నారు? పక్క రాష్ట్రంలో ఈ పత్రిక సంగతి ఏంది? ఇవన్నీ కూడా దయచేసి తెలంగాణ బిడ్డలు ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇటువంటి కుట్రలు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున సాగుతాయి ముందు ముందు. వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు ఇదివరకే చేసిండ్రు, ఇంకా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆ ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి దయచేసి తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి. ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి हैदराबाद के लंगर हाउस झील में कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां तालाब में डूबने से बाप और बेटे की मौत हो गई। मोहम्मद करीम, जो जीएचएमसी के आउटसोर्सिंग मुलाजिम थे, अपने 14 साल बेटे मोहम्मद साहिल को बचाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गए। ये हादसा कल दोपहर 3 बजे के करीब पेश आया, जब बाप बेटा झील की सफाई कर रहे थे। करीम ने अपने बेटे की चीखें सुनकर फ़ौरन इसे बचाने की कोशिशें की, लेकिन वो भी हादसाती तौर पर तालाब में जा गिरे और डूब गए। पुलिस के मुताबिक कल छुट्टी की वजह से करीम अपने बेटे को साथ काम पर लाए थे। डीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों की लाशें निकालकर मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। करीम कंदिकल गेट के रिहायशी थे। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर सेक्शन 194 BNS के तहत मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज किया है और गफलत के तमाम पहलुओं की तहकीक़ात जारी है। दूसरी जानिब मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस वाक़े को महकमे की तरफ से आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के साथ गफलत करार दिया और कहा कि महकमा ना तो काम की निगरानी करता है और ना ही इन्हें लाइव जॉकेट्स फराहम करती है। उन्होंने जीएचएमसी और हैदराबाद कमिश्नर से तहकीक़ात और मुतासरा ख़ानदान को मुआवज़ा दिलवाने का मुतालबा किया, जबकि हुप्पूगुड़ा के मजलिसी कॉरपोरेटर ने तदफीन के तमाम तर इंतज़ामात अंजाम दिए। चारशुम्बा आज जो जीएचएमसी एंटोमोलॉजी की जानिब से जो लेबर काम करता है तालाब के अंदर, पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे थे कि मच्छर की तादाद बढ़ चुकी और उस सिलसिले में ख़ास तौर से ड्रोन से स्प्रे के लिए और FTL मशीन के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर 6 से 7 मरतबा जमात की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी और ये बताया गया था कि लेबर की ज़्यादा ड्रोन और FTL मशीन की ज़रूरत है, ताकि FTL मशीन पिछले कई सालों से शातब तालाब, लंगर और हुडा पार्क और कटोरा हाउस और साथ ही साथ मूसी के अंदर भी इस मशीन के ज़रिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा था मशीन, और उस मशीन के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की है। मगर ये 2-3 महीने से मशीन का टेंडर ना होने से रोक दिया गया था और आज जो करीम नाम करी है, जो आउटसोर्सिंग लेबर है एंटोमोलॉजी की जानिब का जीएचएमसी का, करीम और अपने बच्चे के साथ में साहिल के साथ में सुबह में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक शातम तालाब के अंदर काम किया, पत्ता वगैरह निकाला। उन्होंने करीम और करीम का बच्चा साहिल और उनके साथ में और दीगर जो आउटसोर्सिंग लेबर है वो काम करे। 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर आया, हुडा पार्क में आकर काम करा। मैं समझता हूँ 2 मरतबा वो पत्ते को बीच से लेकर किनारे तक लेकर छोड़ा। तीसरी मरतबा जब गया तो साहिल जो बच्चा है वो डूब रहा था। उसको बचाने के लिए करीम उनके वालिद को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े, मगर वो बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़कर अंदर दलदल में फंस गया। और उसके बाद मुझको 2:45 बजे इत्तला मिली। मैं यहाँ पर फौरी लंगर हुडा पार्क को पहुँचा। मैं, मेरी जमात के कॉरपोरेटर, मेरी जमात के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर्स। उसके बाद यहाँ पर देखा मैं हमारे गोलकुंडा
इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम साथी थे। फौरी मैं हाइड्रा कमिश्नर रंगना साहब को इत्तला करा फ़ोन पर, और मैं समझता हूँ 40 मिनट के अंदर वो DRF की टीम को भेजे बोट्स के साथ में, और आने के बाद 1 घंटे के अंदर 2 लाशों को भी तालाब से निकाल दिया गया। और मैं फौरी जोनल कमिश्नर हमारे खैरताबाद सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर को भी इत्तला करा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर जो हेल्थ है पंकजा मैडम को भी इत्तला करा, उनके तमाम अहदेदारों को इत्तला करा, और वो अभी बॉडी यहाँ से निकाल कर उस्मानिया मार्चरी को भेजा गया, और उनकी फैमिली भी आई। करीम को 3 बच्चे, ये बच्चे की उम्र साहिल की उम्र मैं समझता हूँ 20 या 22 साल की उम्र है, और करीम की उम्र है 38 से 40 साल उम्र है। करीम को 3 बच्चे भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। ये साहिल बड़ा बच्चा था। मैं इस मीडिया के ज़रिए हमारे कमिश्नर साहब से भी इंशाल्लाह बात करूँगा इनको कंपोजिशन दिलाने के लिए, क्योंकि एक ही घर के बाप बेटा गुजर चुके। पूरा डिपेंड करीम के ऊपर था। वो बच्चा बड़ा था, आज आकर यहाँ पर काम करने के लिए आया था, इत्तेफाकी हादसा हो गया। अगर मैं समझता हूँ FTL मशीन होती तो ये हादसा ना होता था। मैं कमिश्नर GHMC और जोनल कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर से तमाम लगातार बात करते गया, इत्तला देते गया। इंशाल्लाह कल जाकर उनसे मुलाकात कर इनकी फैमिली को जमात की तरफ से नुमाइंदगी कर बिल्कुल इनको कंपोजिशन दिलाने का पूरा मुतालबा करेंगे, और कंपोजिशन दिलाएंगे भी इंशाल्लाह। और ऐसा हादसा ना होने के लिए मैं कमिश्नर GHMC से मुतालबा करता हूँ कि वो FTL मशीन को चालू कराए, क्योंकि शातम तालाब भी एक दलदल बन चुका, पानी काफ़ी बड़ा है, उसमें डेप्थ है। लंगर हुडा पार्क है, कटोरा हाउस है, इसी तरीके से मूसी है। मूसी के अंदर ये FTL मशीन के ज़रिए अच्छा काम कर सकते हैं। ये मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, पत्ता साफ़ करने के लिए उससे, और FTL मशीन में रखकर ड्रोन को भी काम कर सकते हैं, लेबर भी काम करता है। ये FTL मशीन होता तो ये हादसा ना होता था। यही इत्तला देने के लिए आज ख़ास तौर से हमारे हाइड्रा कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनको इत्तला मिलते ही DRF टीम को 1 आधे घंटे के अंदर भेजे। उसके बाद डेड बॉडीज़ को निकाल दिया गया, अभी उस्मानिया मार्चरी को भेजा गया। इंशाल्लाह जो भी हो सकता है इनको फैमिली को, इनके ख़ानदान वालों को कंपोजिशन दिलाने के लिए पूरी जमात की जानिब से नुमाइंदगी कर कंपोजिशन दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुकाम ने खजूरों में छुपाकर लाया गया 172 ग्राम सोना बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। स्मगलरों ने सोने के टुकड़े खजूर के अंदर महारत से छुपाए थे, लेकिन स्कैनिंग के दौरान हुकाम ने इनकी चालाकी पकड़ ली। कस्टम्स के अफसरान ने मुश्तबा सामान की तफ्तीश की तो खजूर के बैग में सोने की चैन और दीगर टुकड़े मिले। हुकाम स्मगलिंग नेटवर्क की मज़ीद तहक़ीक़ात कर रहे हैं, जबकि ये अनोखा तरीक़ा सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। दिल्ली असेंबली में हंगामा आराई के बायस आम आदमी पार्टी के MLAs को 3 दिन के लिए मुअत्तल किए जाने के बाद जुमेरात को असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। असेंबली के दाखिली रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी गई, जिस पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी ने पुलिस से ऑर्डर कॉपी दिखाने का मुतालबा किया और BJP पर मनमानी के इल्ज़ामात लगाए। दूसरी जानिब दिल्ली के वज़ीर परवेश वर्मा ने इस मुअत्तली को जायज़ करार दिया कि MLAs ने ऐवान की कार्रवाई में खलल डाला था। ये तनाज़ा CAG रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद बढ़ा, जिसमें आप हुकूमत की मनसूख शुदा शराब पॉलिसी के बाद 2002 करोड़ के माली नुकसान का इंकशाफ किया गया था। आतिशी समेत 21 MLAs मुअत्तल कर दिए गए, जिन्होंने रिपोर्ट और मुबैना तौर पर BR अम्बेडकर की तस्वीर को सरकारी दफातर से हटाने के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था।
आम आदमी पार्टी ने हुक्मरान जमात से सवाल किया कि क्या वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अम्बेडकर से बड़ा लीडर समझती है, जिसके बाद सियासी कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो गया। फोन नहीं उठा रहे हैं। स्पीकर की तरफ से कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं है। हम बार बार पुलिस वालों से मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले कोई भी आदेश नहीं, वो सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 सिटिंग के लिए सस्पेंड कर दिया गया। कहीं पर भी उनके पास रिटर्न आदेश नहीं है कि विधानसभा परिसर में एंट्री नहीं देनी है। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि पहले वो कोई ऑर्डर दिखाएं। और आप देखिए सारे पुलिस वाले भाग गए सारे पुलिस वाले। हम उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं, सारे पुलिस वाले ही भाग गए। सारे पुलिस वाले भी भाग गए हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा आदेश नहीं है। हम स्पीकर साहब के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय जय। BRS MLC की कविता ने रियासती हुकूमत और बीजेपी के दरमियान खुफिया गठजोड़ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं और RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस की साजबाज बेनकाब हो चुकी है और कांग्रेस हुकूमत बीजेपी के कंट्रोल में काम कर रही है। कविता ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी सरकारी इजलासों में क्यों शिरकत कर रहे हैं। कविता ने SLBC प्रोजेक्ट पर रेवंत रेड्डी के दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि BRS की हुकूमत के दौरान इस पर तेज़ी से काम हुआ, जबकि कांग्रेस और TDP हुकूमतों ने 30 साल में सिर्फ 3,340 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं KCR हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल में 3,890 करोड़ रुपए खर्च करके 11 किलोमीटर टनल मुकम्मिल किए। उन्होंने मज़ीद कहा कि टनल हादसे के दौरान मजदूर ज़िंदगी की जंग लड़ रहे थे, मगर रेवंत रेड्डी इंतखाई मुहिम में मसरूफ़ थे। कविता ने कांग्रेस और बीजेपी के इत्तेहाद को बेनकाब करने का ऐलान करते हुए कहा कि BRS अवाम के हकूक़ के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। యాపిల్స్ని ఆరెంజెస్ని కంపేర్ చేయొద్దు. ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ ప్రపంచంలో టనల్స్ తవ్వడమే వింత అయితే అందులో లార్జెస్ట్ టనల్ ఇది వరల్డ్లో. ఇటువంటి టనల్లో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఇటువంటి టనల్ యాక్సిడెంట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా జరిగింది. జరిగినప్పుడు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి పోయి ఆడనే కూర్చున్నాడు. ఒక ముఖ్యమంత్రి పోయి అక్కడ కూర్చుంటే రెస్క్యూ ఆపరేషను సీరియస్నెస్ అన్నది తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి పోలేదు, మంత్రులు పోయి కూర్చున్నారు. కానీ ఇయ్యాలటి వరకు పేపర్లో వార్తలు ఏమొస్తున్నాయి, ఇంకో పైప్ వస్తుంది, ఇంకో మెషిన్ వస్తుంది, వచ్చిన మెషిన్కి పార్ట్స్ బాగాలేవు, ఉన్నాయి లేవు అంటే ఒక కోఆర్డినేటెడ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఎఫర్ట్ అనేది కనబడతలేదు. కిషన్ రెడ్డి గారు ఏం అడుగుతున్నారో ఏం అడుగుతలేరో, ప్రధానమంత్రి గారి డైరెక్షన్లో ఈ RSS ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం పని చేస్తున్నారో మాకు తెలియదు. వారి బ్యాక్గ్రౌండే RSS, వాళ్ళిద్దరు ప్రతి విషయంలో కలిసి పని చేస్తారు. మొన్న MP ఎలక్షన్లో చూసినాం, అంతకుముందు MLA ఎలక్షన్లో చూసినాం. మొదటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ వాళ్ళే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని దగ్గరుండి కాపాడుతున్నారు. మేము ఏదైనా తీవ్రమైనటువంటి విమర్శ తేవడమో ప్రజల ముందుకు ఒక వాస్తవాన్ని బయటపెట్టడం చేయగానే ఎవరు వచ్చి మమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు? ఫస్ట్ రఘునందన్ రావు గారు, బండి సంజయ్ గారు వచ్చి మమ్మల్ని తిడుతుంటారు. అంటే వాళ్ళని ఏదో తిట్టినట్టుగా ముఖ్యమంత్రి గారిని డిఫెండ్ చేసుకుంటా. పార్ట్నర్షిప్ ఈజ్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్ బ్రదర్. అది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో. దేశం మొత్తం లేని జరిగినా కూడా ఇక్కడ మాత్రం వాళ్ళిద్దరు కలిసే ఉంటారు. ఇక్కడ మాత్రం అన్ని వాళ్ళు అనుకునే పనులు చేస్తారు, అనుకునే విమర్శలు చేస్తారు. ఎప్పుడు ఎవరు పాత్రను ప్రవేశపెట్టాలనో వారికి తెలుసు, అట్లా ప్రవేశపెట్టుకుంటూ చేస్తున్నారు. సో కాంబినేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఏదన్నా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో అంటే దట్ ఈస్ బిట్వీన్ బీజేపీ అండ్ కాంగ్రెస్. థ్యాంక్ యూ. शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब कार का एक हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसने मेट्रो पिलर के साथ साथ एक कार को भी टक्कर मार दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ఎలా అయింది యాక్సిడెంట్?
आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना और हैदराबाद तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हैदराबाद में HCL टेक कैंपस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। SLBC टनल में जाने की इजाज़त ना मिलने पर हरीश राव और BRS कायदीन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तेलंगाना कानून साज कौंसिल इंतखाबात की आज हुई पोलिंग। BJP और कांग्रेस में सख्त मुकाबला। रेवंत रेड्डी BJP के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत BJP के कंट्रोल में है कि कविता का बयान। हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप ने निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व अस्पताल का किया दौरा और तामीराती काम और मसाइल का लिया जायजा। दिल्ली एयरपोर्ट पर खजूरों में छुपाकर लाया गया सोना बरामद, स्मगलिंग नाकाम। दिल्ली असेंबली में हंगामा, आम आदमी पार्टी के 21 MLAs मुअत्तल, MLAs का एहतजाज। हैदराबाद के लंगर हाउस झील में हादसा, बेटे को बचाते हुए बाप भी डूबकर जान बहा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541434।